UNICEF as communication specialist. I've been an old Bhopali also. I've been for Bhopal for a very long number of years. And a lot of people sitting in audience are people whom I have learned with. Raghuraj sir is there, so I acknowledge his presence. Vijay Agarwal sir has just gone out. Naidu sir, Shashi ji, I know a lot of people. Nandi sir piche baithe hue hain. So I know a lot of people who have been working with us, have been associated with us. I thank you and I acknowledge the reason I'm here is also because of Raghuraj sir. He called me first and then Preeti ma'am called us both. My name is Anil Gulati and I have a colleague Prashant. Prashant, can you come here please? Dr. Prashant is our health specialist. He's not very old to Madhya Pradesh. He's very new to Madhya Pradesh. So anything he says which you feel is there, so I own the responsibility because I'm old and people listen. First of all, I'd like to wish doctors a very happy Doctors' Day. We have Dr. Subodh Vashne, I think, so he made a presentation. So sir, I'd like to convey the greetings on. Doctors, you have saved our lives. Please continue the motto of saving more lives. COVID saw the worst and the best of Bhopal. We had a tough time. I was a part of work which we did in COVID with Government of Madhya Pradesh. I must acknowledge that a lot of good work was done by all the doctors, Government of Madhya Pradesh. A lot of civil society organizations came forward during COVID and there was a phenomenal moment. Dr. Vijay Agarwal is already here, so I'd like to acknowledge his presence also. In fact, I'll come to that later. So I'd like to thank all the doctors which were there. Since I just wanted to say Dr. Vijay Agarwal, I worked with him when he was the head of Press Information Bureau. We got a lot of support and learning from Dr. Vijay Agarwal, so acknowledge his work. What we're going to talk, me and Prashant are going to talk is about presentation, is about child rights. Why child rights, why doctors, and why priorities for children. We were given a topic of G20, but I just wanted to say that that was a lead by Atal Bihari Institute of Good Governance. We had participated in T20 meeting as UNICEF and we had given our contribution. But we would not like to kind of dwell on something which it's a mandate of AIGGPA. Our mandate is for children, so we'll speak for priorities of children in relation to health. So we have our boss, Chief of Health with us who will speak on it. Next slide please. Okay, why children, why rights? Everybody tells me you talk about child rights, but they are similar to human rights. आप क्यों बच्चों की बात करते हैं बार-बार? बच्चे ने एक राइट एक बहुत बड़ा काम करता है. वो बताता है कि बच्चों को जरूरत क्या है, बच्चों की वल्नरेबिलिटी बहुत है, कि बच्चे ऐसे हैं जो कई बार डिसीजन लेते भी हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. बट हमारी जिम्मेदारी है स्टेक होल्डर्स एज एडल्ट्स टू टॉक अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड गिव चिल्ड्रन व्हाट दे नीड देयर, नॉट जो हम डिसाइड करें इस बड़े कि बच्चों की जरूरत है. व्हाट इज द नीड व्हिच चिल्ड्रन वांट. दैट्स द रीजन वी हैव दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स, बिकॉज दे आर वल्नरेबल. दैट डिस्ट्रिक्ट ग्रुप उनकी जरूरत अलग है, उनके राइट्स अलग हैं, और एक स्पेसिफिक हिस्सा जो मानव अधिकार के अंदर होता है वो बच्चों के अधिकार हो गए. ये एक समझौता है जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. एक चीज बता दो, 1989 में पूरे विश्व के लीडर्स ने एक बहुत ऐतिहासिक समझौता किया था जिसको यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड कहते हैं. पूरा कन्वेंशन, ये पूरे विश्व में अगर कोई ट्रीटी ऐसी है जो सबसे ज्यादा देशों ने इसको सब्सक्राइब किया है, दैट इज यूएनसीआरसी. Over 196 countries today have already signed the treaty of UNCRC. One of the largest ratified treaty in the world is बच्चों का जो बाल अधिकार समझौता है, जिसको कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड कहते हैं. ये फ्रेमवर्क है जहाँ पर सबकी जवाबदेही निश्चित की गई है. सरकार क्या करेगी, हम स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, आप और हम सब मिलकर क्या करेंगे, सबकी जवाबदेही है. और इसमें कुछ अधिकार दिए गए जिनको मानव अधिकार या बच्चों के अधिकार कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. जो बाल अधिकार समझौता है, इसके अलावा उसके 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी हैं, जिसमें 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल तो भारत सरकार ने भी साइन किए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आर्म कन्फ्लिक्ट पे आते हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग के ऊपर आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं, और उनको कैसे हम लोगों को संचार करना पड़ेगा, उस पूरे मुद्दे पे ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है जिसको साइन किया हुआ है. इसी ट्रीटी के अंदर एक 43 से 54 आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं सरकार क्या करेगी, सरकार की क्या जिम्मेदारी रहेगी इसके अंदर. और लोग कहते हैं मुझे कि समझौता साइन करते इसका क्या मतलब, ये कानून नहीं है, समझौता है.
जब सरकार ने बोला ये हमारा कमिटमेंट है कि बच्चों के लिए काम करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हम लोग डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट है, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, वो सब अंतर्गत इस बच्चों के लिए आता है कि बच्चों की बर्बादी क्या करेंगे। कन्वेंशन एक तरह का एग्रीमेंट होता है सरकारों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही होती है, क्योंकि हर थोड़े सालों बाद एक रिपोर्ट जाती है संयुक्त राष्ट्र को कि भारत ने या किस देश ने क्या क्या किया, और उसकी रिकमेंडेशन वापस उस देश को आती है कि आपने ये अच्छा किया और ये और करने की जरूरत है। तो पॉलिटिकली इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल आइटम। शशि जी ने और सुबोध जी ने एक बात की थी कि वो लोग ए पॉलिटिकल है, यूनिसेफ भी बिल्कुल ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जितना मैंडेट है पॉलिटिकल को इशू करने के लिए वो सीआरसी है। यूनिसेफ is lucky to be a part of invited member to CRC convention. You know, जब भी भारत की या किसी देश की भी रिपोर्ट जाती है, we also have a UNICEF, इसी तरह सिविल सोसाइटी अगर भोपाल इंटरनेशनल करें अपनी रिपोर्ट भेजना चाहे कि भोपाल में बच्चों की स्थिति क्या है, it is welcome, it is possible. Even you can Shashi, you can send it, I can send it, and UN committee actually takes care of all the reports which come from every country, every person. So if Bhopal International Center tomorrow decides कि हम लोग हर 2 साल 3 साल बाद एक बच्चों की स्थिति भोपाल में क्या है, जिसमें गैस विक्टिम्स भी आ सकते हैं, कोई भी सब बच्चे जो आते हैं आप भेज सकते हैं, they're more than welcome. There is no foundation, there is no cost to it. In fact, there is a process. You just kind of go through the process. If you can't go to that place where it has been reviewed, but you can send it by email. भारत से बहुत सारी सिविल सोसाइटी संस्थाएं रिपोर्ट को भेजती हैं। मध्य प्रदेश से उसके इनपुट जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में अभी पूरी रिपोर्ट नहीं जा पाती, लेकिन जैसे हक है, इंडियन राइट्स और चाइल्ड राइट्स से दिल्ली के अंदर वो अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भेजते हैं जो यूएन कन्वेंशन को जाती है, जो भारत सरकार की रिपोर्ट जाती है उसके साथ वो रिपोर्ट भी कंसेंसस में ली जाती है जब अपनी रिकमेंडेशंस दी जाती है। इट इज पॉसिबल, सो दिस इज वन ऑफ द वर्क व्हिच यू कैन डू, टेक केयर ऑफ इट एंड डू इट, एंड राइट टू हेल्थ पार्ट, चाइल्ड हेल्थ पार्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड। इसके जो बाल अधिकार समझौता के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है जिसमें जो आज है, जो आपका हेल्थ वर्टिकल है, जो बात करता है बच्चों के जीने का अधिकार, उनकी डेवलपमेंट का अधिकार है, और कुछ भी हम करेंगे बच्चों के हित के लिए, और ये यूनिसेफ का भी बाइंडिंग है। यूनिसेफ व्हाटएवर वांट्स टू डू समथिंग, हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का हित कैसे आगे है, सरकार का हित से ज़्यादा जरूरी है बच्चों के हितों की बात करना। शशि जी ने बोला था पॉलिटिकल, सर हम पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में भी काम करते हैं, रघुराज सर यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उसमें हम हर पार्टी के साथ बराबर अप्रोच करते हैं, और हमारा प्रिंसिपल ये रहता है कि बच्चों का हित आगे रखना पड़ेगा आप जब भी अपने चुनाव में जाते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, हर बच्चा बराबर है, रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ राइट, इसमें बच्चों के भी व्यूज लेने चाहिए। अगर भोपाल इंटरनेशनल सेंटर कल सोचता है कि बच्चों की बात करें, हम जैसे प्लानिंग कमीशन, महिला बाल विकास, हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, मोर देन वेलकम, यू कैन टेक व्यूज ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट डू चिल्ड्रन वांट फॉर आवर सिटी, व्हाट डू चिल्ड्रन सी द चैलेंज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चों की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि एक दुनिया जो बच्चों के हित के लिए बने, वो तभी पॉसिबल है जहाँ बच्चों की भूमिका उसमें हो, जहाँ बच्चे अपनी बात रख पाए। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, और मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पे जाऊंगा क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बाल अधिकार समझौता में जो आर्टिकल 6 है वो बोलता है कि हर बच्चे को इनहेरेंट राइट है लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। प्लीज रीड द वर्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट इज जस्ट नॉट लाइक कि जीने का अधिकार है, इट इज ऑल्सो अबाउट गुड लाइफ, गुड हेल्थ। आर्टिकल 7 कहता है कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली होना चाहिए जैसे पैदा होते हैं बच्चे। अभी भी हम लोग काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होता हमारे मध्य प्रदेश में, बट यस वी आर डूइंग अ गुड जॉब ऑन इट। आर्टिकल 24 हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज की बात है कि हम कुछ भी करेंगे बच्चों का हमारा राइट है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सबको हमें गुड क्वालिटी हेल्थ केयर देना पड़ेगा, बेस्ट हेल्थ केयर देना पड़ेगा, जिसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, न्यूट्रिशियस फूड आता है, क्लीन एनवायरनमेंट आता है, और हमें 28 आता है जो बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। मैं अपनी बात को यही कहूँगा, मैं हैंड ओवर द माइक टू प्रशांत, who's our health specialist, to talk about more priorities for children. But just wanted to give you that this is the background for which we work, our whole work is beyond this background. Over to you.